and a warm welcome to today's session with the Khayal Club. So, for those of you who are joining us for the first time, let me tell you, Khayal is India's #1 app for senior citizen. And if you have not yet downloaded this app and you are watching us on our YouTube channel, you can go to the App Store and to the Google Play Store और आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारी ख्याल टीम जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है टू असिस्ट यू with whatever technical needs you have or any other questions you need to go ahead and answer. This is Gloshar ji, Chinmoy ji, Raisa ji, Yogini ji, Sania and Janvi. You can also be a part of the Khayal Club now by going ahead and downloading our app and taking a membership of the Khayal Club, and you will then be able to avail many different benefits. तो ये सारे बेनिफिट्स जो आप देख सकते हैं, जो आपको इंफोटेनमेंट मिलता है, दिन में हम 4 स्पेशल सेशंस करते हैं हमारे सीनियर्स के लिए फ्रॉम द ऐप। खास हमारे जो ट्रैवल्स होते हैं, जो ख्याल के टूर्स एंड ट्रैवल्स, जिसमें हम सीनियर्स को अलग अलग नई एक्साइटिंग जगह पे लेके जाते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक ऑल्सो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स फॉर सीनियर्स एंड ऑल्सो कॉन्सियर्ज सर्विस विथ ऑन डिमांड असिस्टेंस। तो ये सारे हमारे जो सेशंस है, ये हमारे ऐप के द्वारा आप अटेंड कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द सेशंस दैट आर अवेलेबल टू यू। वी ऑल्सो लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, हमें नई नई चीजें सीखने को बहुत पसंद है। और वी ऑल्सो लाइक टू डू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। वी लव टू प्ले अंताक्षरी विद ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो हाउजी, so you can attend all of these sessions. We are also making sure that you are very careful when you are going ahead and navigating the world of finance. You go ahead and use our Khayal card, which you will get on taking the membership of the Khayal Club, and you can do safe online transactions. इसके बहुत सारे features हैं. You can definitely see them on the screen right now. And also, whenever you use your Khayal card, you can win some Khayal coins, जो आप वहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन में यूज कर सकते हैं टू विन सम एक्साइटिंग पॉइंट्स। ख्याल के ऑफर्स भी जो खास करके है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इट्स ऑल अवेलेबल ऑन आवर ऐप, एंड यू कैन ऑल्सो गो ahead and refer the Khayal Club membership with all your friends. You just need to go ahead and send them an invite link, and when they join through your invite link, आप पैसे भी कमा सकते हैं और आप ख्याल कॉइन्स भी वहां पे आपके कलेक्ट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो ahead and tell you about Selvida. ये हमारा एक बहुत ही खास ये ऑफर चल रहा है हमारे ख्याल ऐप में। सो यू कैन गो एंड for yourself, you can go ahead and ask for this sample which is available through our Khayal app. आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर डालना है, and you can get this tin of Selvida protein which is specially designed for seniors, and you can go ahead and get the sample for free. So please, I would like to go ahead and request all of you to go to the app, go and fill the form, and you can go ahead and get this sample of Selvida for free for all the Khayal Club members. So there are many benefits of it, and we are going to go ahead and talk a little bit more in detail about it. We will do that as soon as we go ahead and introduce our today's guest speaker. So आप सबको पता है, in the Khayal community, what we also like to do is that we like to learn new things, and to do that we have lots of experts जो हमारे साथ आते हैं, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो आके हमें नई नई चीजें सिखाते हैं। तो टुडे वी हैव डॉक्टर नंदन जोशी, ही इज फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज, एंड ही इज गोइंग टू गो अहेड स्पेसिफिकली एंड टॉक अबाउट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें खाने को अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं भी खानी है, हम फिर भी खाते हैं, बट दैट इज a kind of a war that we are always doing that. But it will be easier to win that war and easier to fight that battle if we have some scientifically backed facts. और इसी को हमें दर्शाने के लिए we have Dr. Nandan Joshi. He is going to talk about the role of nutrition in diabetes, in pre-diabetes, and also in old age, how you can go ahead and take care of your weight and manage your obesity.
So namaste, Dr. Joshi, and thank you so much for coming and meeting with all the members of the Khayal Club. As you see, we are there and attending this session from all over the country in the different cities and towns of India. A very good evening to you and a warm welcome once more to the Khayal Club. Thank you so much, Vikas ji, and thank you, Khayal, for inviting me to this session. And good evening to everyone who is attending this. Namaste. Or I hope कि you will like this session. I'll try to make it interesting, ताकि boring ना हो, क्योंकि कभी-कभी science बहुत boring हो जाती है. तो at least I'll try to make sure that we'll keep it short and nice and try to explain you things. और जो भी questions है, we will take it at the end. Okay. So and if you have any questions that you want to ask in between, आप chat window में भी उसको you can type the question. Otherwise, we will take all the questions at the end. So, शुरू करें विकास जी, start the session. Definitely, Dr. Nandan, we can start the session. So today's topic is the role of nutrition in diabetes, pre-diabetes, and obesity. Okay, so we'll go through these slides. I'll explain you things as I go. Okay, so I'm Dr. Nandan. I'm from Mumbai, so I stay in Mumbai. Or been with Dr. Reddy for last 3 years, and overall I have experience of around now 17 years. Most of it is in nutrition. So I have a lot of passion for nutrition, talking about different nutrition topics. So it's a pleasure speaking with all of you on this topic, which is very close to my heart personally, because I have many diabetics in my family as well. So, they always ask for advice. So while giving them advice, I have also learned a lot of things. कि क्या क्या नई नई चीजें आ रही है, नया साइंस आ रहा है. So happy to share all that information with all of you today. Okay, so what we will cover is we'll understand what is diabetes, what is this pre-diabetes, and what is obesity. How problematic these conditions are, क्या क्या कितना बड़ा है ये problem, कैसे manage करना है इसको. ठीक है, so what are the options to manage? उसमें what is the role of nutrition? तो nutrition का क्या role है, मेडिसिन का क्या रोल है और न्यूट्रिशन का क्या रोल है, तो वो we will understand that. Then we will come to the supplement that Vikas just showed you. We will talk about the supplement in detail and some simple tips at the end, and followed by question answer. So this will be the flow for today's session. So let's start with what is diabetes, pre-diabetes, and obesity first of all. So diabetes, जिसे हम मेडिकल में डायबिटीज मेलाइटस ऐसा भी एक टर्म यूज होता है. क्रॉनिक मतलब जो लंबी बीमारी है, जैसे एक बार हो गई तो जनरली हम कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग बीमारी है, राइट. तो उस लाइफ लॉन्ग बीमारियों में डायबिटीज एक चीज आती है. व्हाट इट मींस, अबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर. सो ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा होती है, तब हम उससे बोलते हैं कि इसको डायबिटीज हो गई है. ठीक है, उसमें 2 टाइप होते हैं. टाइप 1 मतलब जो बॉडी होती है आपकी, वो एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो बिल्कुल बनाना बंद कर देते हैं. इट स्टॉप्स मेकिंग इंसुलिन. जनरली यू विल सी दिस मोर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में ज्यादा दिखता है टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 2 डायबिटीज इज व्हेन बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बट योर ब्लड ग्लूकोज जो है वो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट इंसुलिन. तो जो ब्लड ग्लूकोज एक्चुअली हमारे सेल्स में जाना चाहिए वो ब्लड में रह जाता है. Therefore, the level in the blood increases. ठीक है, therefore it creates problems. तो उसे बोलते हैं type 2 diabetes. Generally, is most of us who has diabetes will be having type 2 diabetes. Okay. तो what is pre-diabetes? Pre-diabetes मतलब ब्लड में शुगर ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि वो क्वालिफाई हो सके डायबिटीज के लिए. ठीक है, तो बॉर्डर लाइन जिसे हम बोलते हैं. I'll tell you also what those levels are. तो टेस्ट में कैसे दिखते हैं. So that is called as pre-diabetes. Okay. तो symptoms क्या क्या होते हैं? तो generally जो symptoms है, frequent urination, मतलब आपको यूरिन करने के लिए बार-बार यूरिन करने जाना पड़ता है. ठीक है. सडनली आपको लगता है कि प्यास बहुत बढ़ गई है. समर में तो बढ़ती है प्यास, बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जब लगेगा कि बार-बार प्यास लग रही है, बार-बार भूख लग रही है, हंगर, वीकनेस आ गया है, फटीग आ गया है, थोड़ा सा वेट कम हो गया है, कभी कभी नजर कमजोर हो गई, जो होती है ओल्ड एज के साथ, बस सडनली आपको लगेगा कि भाई ब्लड विजन हो गई है डिस्पाइट स्पेक्टेकल्स. कभी कभी नौशिया होता है,
कभी अगर आपको कुछ इंजरी हो जाती है तो उसको टाइम लगता है हील होने के लिए, ठीक है। और टिंगलिंग इन हैंड्स वगैरह ये काफी बाद में दिखता है, बट ये कुछ सिम्टम्स है व्हेन यू कैन थिंक कि ये शायद डायबिटीज के सिम्टम हो सकते हैं, राइट। सो इट इज बेटर टू शो योर डॉक्टर इफ यू फील एनी ऑफ दिस सिम्टम, गेट योर ब्लड शुगर चेक्ड, ओके। इसमें फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड टेस्ट करेंगे, या आप खुद भी जाके लैब से ब्लड टेस्ट कर सकते हो। कौन से टेस्ट होते हैं तो आप सबको शायद ये पता होगा, काफी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है जो सुबह सुबह करते हैं आफ्टर 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो रात को आपने खाना खा लिया समझ लीजिए 9 बजे, तो सुबह आप 7 बजे 7:30 बजे जाके, या रात को 10 बजे भी खाना खा लिया, आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे जाके ब्लड दे सकते हो, ठीक है। 10 घंटे का फास्टिंग लगता है, 12 घंटे का हो तो बेहतर है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज वो क्या होता है, तो फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज अगर आपका 100 से कम आ रहा है मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है। अगर 100 और 125 के बीच में, बिटवीन 100 एंड 125, देन इट इज प्री डायबिटीज, ठीक है। और अगर 126 से ज्यादा है, इट्स अबव 126, दैट मीन्स यू हैव डायबिटीज। तो ये हो गया फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। उसी तरह एक टेस्ट होती है जिससे बोलते हैं मेडिकल में पोस्ट पैंडियल, मतलब पोस्ट मील, खाना खाने के बाद जो 2 घंटे बाद, क्योंकि खाना खाते हो आप तो फिर बाद में वो एब्जॉर्ब होता है, तो 2 घंटे लगते हैं ब्लड शुगर बढ़ने। तो खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी ब्लड शुगर थी उससे बोलते हैं पोस्ट पैंडियल। अब वो अगर 140 के नीचे है तो नॉर्मल है, बिटवीन 140 टू 199 उससे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, एंड इफ इट इज अबाउट 200 देन इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज, ठीक है। और आजकल एक नई टेस्ट आ गई है जो, क्योंकि ये क्या होता है फास्टिंग और पोस्ट पैंडियल जो है, आप तो जानते होंगे, जैसे एक दिन पहले आप शादी में गए तो आप बोलोगे अभी कल मैं ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने स्वीट खा लिया तो मेरा शुगर तो ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है। ये कॉमन एक परसेप्शन होता है विच इज करेक्ट आल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। तो टू अवॉइड दैट दे स्टार्टेड अ न्यू टेस्ट विच इज एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ ऑफ ब्लड शुगर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज HbA1c। कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि HbA1c चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज शुगर बताती है। तो इफ इट इज लेस देन 5.7 दैट मीन्स it is normal. If it is between 5.7 to 6.4 means pre-diabetes है, and 6.5 and above है तो diabetes है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, जनरली एक साथ ही करवा देते सारे टेस्ट डॉक्टर्स, आप जाओगे तो इट इज बेटर टू गेट ऑल 3 टेस्टेड, बिकॉज फास्टिंग एंड पोस्ट पैंडियल जो है वो आपको इमीडिएट बताएगा कि आज क्या है आपकी ब्लड शुगर की हालत, और HbA1c आपको बताएगा पिछले 3 महीने का एवरेज क्या है आपका, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी ओवरवेट और ओबेसिटी मतलब क्या होता है, तो ओवरवेट एंड ओबेसिटी डिफाइन एबनॉर्मल और एक्सेस फैट accumulation which presents some risk to your health, okay। so extra fat accumulation हो गया। now extra fat accumulation क्यों हो गया, there could be multiple reason। एक है lack of exercise, physical activity कम हो जाती है, उसकी वजह से fat deposition हो जाता है। बहुत बार we eat high carbohydrate high fat food जिसकी वजह से excessive fat accumulation हो जाता है, ठीक है। so there are reasons for this। अभी उसका डेफिनेशन होता है कैसे मेजर करते, तो बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे कैसे, दे विल मेजर योर वेट एंड योर हाइट, ठीक है। और एक चार्ट होता है जिसमें इस हाइट के लिए कितना वेट आइडियल है, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट अगर 5 फीट 5 इंच है, 5 फीट 6 इंच है जैसे, मान लीजिए विच इज 165 सेंटीमीटर, तो उस 165 सेंटीमीटर के लिए कितना वेट होना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो वो ओवरवेट होगा, और कहीं बहुत ज्यादा हो गया तो उसे ओबीस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, ये भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हाइट वेट वो मेजर करेंगे और आपका BMI आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरवेट और ओबेसिटी आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। नाउ वी विल सी हाउ प्रॉब्लमेटिक दिस कंडीशंस आर। और बहुत बार ये होता है कि ये सारी चीजें इकट्ठा होती है। सो most of the diabetics in India, almost 60 to 70% जो डायबिटीज के पेशेंट है इंडिया में, they are all overweight और obese, उनका वेट ज्यादा है, उस वजह से उनका डायबिटीज जो है वो ठीक से क्योर नहीं होता है,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा इंटरकनेक्टेड है, ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो अभी जो डेटा है उसमें 100 में से 9 लोगों को डायबिटीज है इस वक्त इंडिया में, और ये कहते हैं कि ये आंकड़ा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया में टेस्टिंग बहुत कम होती है, हर कोई टेस्ट नहीं करता है अपना ब्लड शुगर लेवल, अनलेस एंड अनटिल किसी को कोई सिम्टम हो जाती है। ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं 9% अभी जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज है इंडिया की। वर्ल्ड का एवरेज है 8.3, तो हमारा एवरेज, हमारा नंबर उनसे काफी ज्यादा है, और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ये 2016 का डेटा है, शायद ये 65 मिलियन पीपल उस वक्त डायबिटीज से मरीज थे। ठीक है। और ये प्रेडिक्शन है कि बाय 2035 इंडिया में 109 मिलियन पीपल विल बी डायबिटिक। तो ये जस्ट आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ कि दो चीजें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत कॉमन है। ठीक है। तो बहुत बार हमें होता है कि अरे मुझे डायबिटीज हो गई, तो मुझे ही हो गया डायबिटीज। ऐसा नहीं है, आजकल आपको हर घर में आपको डायबिटिक पेशेंट दिखाई देंगे। तो काफी कॉमन है और ये काफी मैनेज करने में भी आप इसको प्रॉपरली मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये है एक डेटा जो 1990 से 2016 में आप देखोगे, तो ये ब्लू कलर मतलब बहुत कम डायबिटिक पेशेंट्स थे 1990 में, और 2016 में आप देखिए सारे कलर्स चेंज हो गए। ठीक है। तो कुछ जो स्टेट है उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा है साउथ इंडिया में। ठीक है। उसके बाद जो आपको दिखेगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, उसके बाद केरला, दिल्ली, उसके बाद पंजाब, गोवा और कर्नाटका। ठीक है। तो ऐसे नहीं कि बाकी लोग पीछे है, वो लोग भी धीरे धीरे, ये 2016 है तो नंबर्स आगे बढ़ ही रहे हैं। ये 5 कंट्री का डेटा फिर 2019 में आया था, जिसमें 77 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटिक थे। और ये राइट साइड का चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी डायबिटीज जो शुरुआत होती है वो काफी जल्दी होती है। एज यू कैन सी इट स्टार्ट्स एज अर्ली एज 30 to 39. Also the prevalence is very high, almost 5% people are diabetic. 40 to 49 आते आते almost 10% people are diabetic. But look at 50 plus. ठीक है। तो आपकी आज ख्याल जो सीनियर सिटीजन का इतना ख्याल रख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे look at the prevalence of 60 plus and 70 plus is very high. ठीक है। तो ये जो होता है ये something we have to be very careful about. ठीक है। और ओल्ड एज ग्रुप में डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा है कंपेयर टू यंगर एज ग्रुप्स। ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे टू सी शो यू द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ इसको मैनेज कैसे करना। ठीक है। सो ऑफ कोर्स फ्यू सिंपल टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मीट योर डॉक्टर रेगुलरली। अगर आपको पहले तो सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाइए, ही विल डू द टेस्टिंग, एंड इफ यू आर डायग्नोस्ड विद प्री डायबिटीज और डायबिटीज, मीट योर डॉक्टर रेगुलरली। Second, monitor your blood glucose levels. So nowadays, you don't have to go to doctor every time. You can buy there are बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो मशीन्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं। स्ट्रिप होती है, आपको हल्का सा वो प्रिक करना पड़ता है आपके फिंगर्स को, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लगता है, उसमें आपके रिजल्ट आ जाते हैं। ये काफी एक्यूरेट होते हैं, उतने एक्यूरेट नहीं जितना ब्लड टेस्ट है, बट ये काफी एक्यूरेट होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप रेगुलरली शुगर मेजर करना चाहते हैं, तो ये खरीद लीजिए। कोई भी, बहुत सारे कंपनीज के ऑप्शंस है आपके पास, और मेजर करते रहिए रेगुलरली। जो भी मेडिकेशन डॉक्टर ने दिया, यू शुड टेक इट ऑन टाइम। अभी जो दो और चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सरसाइज। इसमें दो तरह के एक्सरसाइजेस है, जैसे कि आपका है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें आपका वॉकिंग है, रनिंग है, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको पसीना आता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो एरोबिक एक्टिविटी होती है, तो वो करना जरूरी है। और साथ में है वेट। अभी ये थोड़ा सा मैं इस पे 2 मिनट लूंगा आपके। लॉट ऑफ टाइम वी थिंक वेट ट्रेनिंग मीन्स इज ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स, तो इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। ठीक है। वेट डंबल, जब हम सोचते कि डंबल जो इधर फोटो में दिखाया गया डंबल, the dumbbell is not required only for a bodybuilder.
ठीक है, ये डंबल जो है सबके घर में डंबल होना चाहिए, ठीक है। और जो मिनिमम वेट का है विच इज 5 kg, आई वुड से 5 kg का आता है, 2.5 किलो का भी आता है, 5 kg का डंबल आपके घर में होना चाहिए। और सिंपल एक्सरसाइजेस है, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपका एज बढ़ता है, आपकी जो मसल होती है वो कम हो जाती है, मसल मास जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अगर आप 70 प्लस है या 60 प्लस है, तो आपका मसल मास जो है वो 30 इयर्स, आप जब 30 साल के थे, 30 साल के थे, उसके कंपैरिजन में लगभग 30% कम हो गया है, 30 to 40%। तो जब मसल मास कम होता है, तो जो बॉडी की एबिलिटी होती है ग्लूकोज मेटाबोलाइज करने की, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपके मसल को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मसल को एक्टिव आप घर में आपके सोफे पे बैठे बैठे भी आप सिंपल डंबल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका जो मसल है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। और इसके बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो ये कोई बॉडी बिल्डर की बात नहीं है, एकदम कम वेट वाला लीजिए और उसके साथ आपकी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी हम आज बात करेंगे वो है डाइट, ठीक है। तो डाइट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाई डाइट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई लास्ट 10 साल में। एक बात तय हो गई कि मेडिकेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। क्यों? एक ऑल ओवर इंडिया स्टडी की थी ये काफी सारे एक्सपर्ट लोगों ने। तो उन्होंने ये देखा कि 10 में से जो 7 डायबिटिक है, उनका HbA1c कंट्रोल में नहीं है, जबकि वो रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं। दे आर टेकिंग रेगुलर मेडिकेशन विदाउट एनी गैप, and 70% of them still not able to control their blood sugar level. इसका एक ही मतलब है कि कहीं और चीजें गलत हो रही है, राइट। क्योंकि मेडिकेशन, आप बोलोगे मैं तो मेडिसिन रेगुलरली ले रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिख के दिए, फिर भी मेरा ब्लड शुगर क्यों कंट्रोल में नहीं है? तो दो वजह है। एक है आपका एक्सरसाइज, एक या तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, ये एक पॉसिबिलिटी है। और सेकेंड जो है आपका डाइट, तो आपका डाइट करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से मेडिकेशन लेने के बाद भी, क्योंकि मेडिकेशन सबसे आसान तरीका है, राइट। हम गोलियां तो लेनी है, सुबह 2 शाम को 2, फिर डॉक्टर बोलेंगे यार बीच में और एक गोली ले लो। डाइट पे काम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे यार दवाई से काम हो जाएगा तो बढ़िया है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। सो वी हैव टू focus on other aspects as well, because ये अभी scientifically it is proven medication alone is not sufficient, ठीक है। तो therefore discussion on nutrition, discussion on diet is very important. So we will come to that point now. So what is the role of nutrition here, ठीक है। So एक टर्म आई थी, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स स्लाइड है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मेडिकेशन है, ये थेरेपी है, जिसे हम थेरेपी भी बोलते हैं, राइट। और हम बोलते हैं ये डाइट है, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाओ, विटामिन लो, मिनरल लो, डॉक्टर बोल रहे हैं। तो एक जब तो बहुत बार डाइट को लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेडिकेशन को हम लोग सीरियसली लेते हैं। व्हाई वी टेक मेडिकेशन सीरियसली? बिकॉज इट इज अ थेरेपी, ठीक है। इट इज अ मैजिक पिल, इसमें कुछ मैजिक है, मेरा ब्लड शुगर कम हो जाएगा। बट डाइट की जैसे बात आती है, तो डाइट मैं तो खा रहा हूँ, मैं तो रोज घर पे अच्छा खाना खाती हूँ, ठीक है। तो दोज आर द एक्सक्यूजेस वी हैव। तो जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उन्होंने एक टर्म बनाई, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। मींस जो आप खा रहे हो न्यूट्रिशन, वो सिर्फ डाइट नहीं है, वो एक थेरेपी है फॉर डायबिटिक पेशेंट स्पेशली, ठीक है। और वो बहुत सारे एविडेंस पे है बेस्ड, ठीक है। तो इट इज एज इम्पोर्टेंट एज योर मेडिसिन, ठीक है। इट इज एज इम्पोर्टेंट एज योर मेडिसिन। इसीलिए उन्होंने बोला डाइट को डाइट नहीं बोलेंगे, आज से हम बात उसको बोलेंगे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ताकि आपको सीरियसनेस लगे। डाइट बोलेंगे तो लोगों को सीरियस नहीं लगता है, तो इसको उन्होंने नया टर्म दिया, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। उसका क्या काम है? उसके 3 काम है बेसिकली।
एक है कि भाई टू मेंटेन प्लेजर ऑफ ईटिंग, मीन्स बहुत बार डायबिटिक पेशेंट के साथ, प्री डायबिटिक ओबीज पेशेंट के साथ ये होता है कि निगेटिव मैसेजिंग होती है कि ये मत खाओ, राइस मत खाओ, बहुत ज्यादा गेहूं मत खाओ, गेहूं का भी ये प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा स्वीट मत खाओ, दिन में 2 बार ही खाओ। देन बहुत सारे फैट डाइट्स आए हुए हैं इंटरनेट पे ही कि 2 बार ही खाओ, फिर कोई बोलेगा नहीं 4 बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। तो ये सारा जो है निगेटिव है, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला इसको पॉजिटिव करो कि प्लेजर ऑफ ईटिंग बना रहे। दूसरा है पर्सनल और कल्चरल चॉइस, मतलब मैं अगर साउथ इंडियन पेशेंट को बोलूंगा कि तुम दलिया खाओ तो दैट इज रॉन्ग। अगर मैं नॉर्थ इंडियन पेशेंट को बोलूंगा तुम ब्राउन राइस खाओ पराठा छोड़ के, तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आपके कल्चर में है, आपके ये आप बड़े हुए हो कुछ फूड खाते। वी कैनॉट चेंज दोस फूड्स ओवरनाइट, ठीक है, रातों रात हम वो फूड बदल नहीं सकते। तो उसको कल्चर में, पर्सन में, आपके फूड ही खाना है आपको जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, बट उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करना है ताकि वो आपके लिए आसान हो सके। और लास्ट है डाइट प्लान। आप बहुत सारे लोग, आप अगर डाइटिशियन के पास गए होंगे तो आपको डाइट प्लान मिला होगा कि सुबह क्या खाना है, फिर बीच में क्या खाना है, लंच में, डिनर में। तो वो होता है डाइट प्लान। और इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिफाइन किए। उससे क्या होगा, उससे आपका HbA1c, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। आपका बॉडी वेट का जो गोल है, मतलब अगर आप ओबीज है तो आपको वेट कम करना है, और अगर आपका वेट ऑलरेडी कम है तो थोड़ा सा आपका वेट बढ़ाना है, ठीक है। और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज के, जैसे बहुत बार डायबिटीज की वजह से किडनी पे असर होता है, उसकी वजह से आपके आंखों पे असर होता है, तो उसको कम करना है। तो ये सारा जो है, इतना सारा काम जो न्यूट्रिशन थेरेपी जो है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कर सकता है, ठीक है। तो ये गोल्स उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। अभी हम एक्सपर्ट्स ने बोला है, बहुत सारी चीजें बोली है, मैं आपको थोड़ी थोड़ी ताकि आपको समझा दूंगा यहाँ पे। तो पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। जो आप कार्बोहाइड्रेट मतलब जो फूड आपका सबसे ज्यादा हम खाते हैं इंडिया में, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो आप आता है सबसे जो बड़ा सोर्स है इसका, वो है राइस। सेकंड बड़ा सोर्स है गेहूं, बाजरा, ज्वारी, जो भी आप ग्रेन्स आप लोगे वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद आपके जो कुछ कॉमन वेजिटेबल है, फॉर एग्जांपल पोटैटो, सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ब्रेड, कोई भी ब्रेड ले लो आप, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो उन्होंने कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, लेकिन इस तरीके से कि लिमिटेड कैलोरीज वहां से आ जाए। लो जीआई मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। फाइबर होना चाहिए, मतलब जो भी आप खाओगे, जैसे वेजिटेबल्स है बहुत सारे, उसमें फाइबर होता है, ओट्स में, बार्ली में फाइबर होता है, फ्रूट्स में फाइबर होता है। तो आपको फाइबर ज्यादा खाना है, ठीक है। आपको सिंपल चीजें करनी है, जैसे अगर आपका व्हाइट राइस कॉमन खाना है तो आप उसको मिलेट के साथ या ब्राउन राइस के साथ रिप्लेस करो, तो ताकि आपका अच्छा कार्बोहाइड्रेट जाएगा। फिर प्रोटीन है, बहुत बार इंडिया में प्रोटीन की कमी है, हम लोग प्रोटीन इंटेक हमारा बहुत कम है। जो लोग खुद को नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार नॉनवेज खाते हैं, और वो भी इन अ लिमिटेड अमाउंट। तो उनको भी प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम कोई प्रोटीन जो है वो रेगुलरली ले। तो सबसे बेस्ट उन्होंने कहा सीरियल पल्स मिक्सचर। ये कॉम्प्लेक्स लगेगा, सीरियल मतलब राइस इज अ सीरियल, पल्स मतलब दाल, ठीक है। तो मतलब खिचड़ी खाओ, राइस और दाल मिक्स करके। क्यों? क्योंकि राइस, खिचड़ी जो होती है उसमें सारे जो इसेंशियल अमाइनो एसिड जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन के, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है। फिर उन्होंने कहा कि सैचुरेटेड फैट कम करो, मतलब कम करो, बंद नहीं करना है, कम करो। आपका ऑयल, घी, बटर, ये थोड़ा सा कम करना है आपको। सबसे बंद जो करना है वो है ट्रांस फैट। अब ये ट्रांस फैट कहाँ से आता है? ये आता है वहां से जहां ऑयल आपका 2 या 3 बार आपको, आप सेम चीज को फ्राई करते हो उसी ऑयल में। जब ऑयल को आप रीयूज करते हो तो उससे ट्रांस फैट पैदा होता है, ठीक है। जैसे आपका बहुत बार जो होता है, आप बाहर खाओगे समोसा, या मुंबई में जैसे वड़ा पाव मिलता है, ये सारी चीजें जो होती है वो फ्राइड होती है। इवन आपके जो
बहुत सारे यंग बच्चों में ये फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तो वो सारा ट्रांस फैट होता है। आपके जो बिस्किट्स होते हैं, केक जो बाहर से आप मंगाते हो, उसमें ज्यादा करके ट्रांस फैट यूज होता है, तो ये आपको बहुत ही कम करना है। शुगर आपको कम करनी है, तो सबको जानते हैं, ठीक है। और जो लोग अल्कोहल और टोबैको लेते हैं, उनको वो भी कम करना है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन है जो एक्सपर्ट ने दे के रखे, ठीक है। और अभी एक रिसेंट स्टडी आई थी, बहुत बढ़िया स्टडी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में का आर्टिकल है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करोगे और प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दोगे, तो आपका जो बॉर्डर लाइन जो डायबिटिक होते हैं, नए नए डायबिटिक पेशेंट, उनका डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत सारे लोगों पे ये स्टडी की थी अक्रॉस इंडिया, तो ये बढ़िया रिजल्ट था। तो ये दिखाता है कि डाइट में चेंजेस करने से आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा, जैसे आपको मेडिसिन से बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये एक स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिपिकली जो आप देखते हो, अगर सिंपल सी बात कहें कि डायबिटिक फ्रेंडली मील मतलब क्या होता है, अगर एक प्लेट लो आप, अगर आप कोई भी प्लेट, आपके 8 to 9 इंच एग्जाम्पल है, उसका आधा हिस्सा जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, मतलब पोटैटो नहीं चाहिए, बाकी सारे जो वेजिटेबल्स है आपके, जैसे आपका कोई भी सब्जी ले लीजिए, बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, या आपका कैबेज है, फ्लावर है, और बहुत सारी चीजें, ये आधा जो मील है वो आपका सैलेड और वेजिटेबल से आना चाहिए। फिर जो 1/4 पोर्शन है बाकी का, वहां पे आपको होल ग्रेन, मतलब जैसे आपकी व्हीट से बनाई हुई चपाती है, रोटी है, वो आनी चाहिए वहां पे। राइस भी आप वहां पे यूज कर सकते हो अगर आप राइस ईटर हो। और जो बाकी 1/4 है वो प्रोटीन है, मतलब दाल से आ सकता है अगर आप वेजिटेरियन हो, दाल है, सोया है, बीन्स है, ठीक है। बीन्स से आप अगर वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, लेकिन जो 1/4 है वो प्रोटीन से आना चाहिए। अगर आप इसको कंपेयर करोगे आपकी थाली से, तो आपको पक्का पता चलेगा कि जो हमारी थाली होती है नॉर्थ इंडिया में, मैंने वेस्टर्न इंडिया में भी आप देखोगे तो चपाती लोग ज्यादा खाते हैं या रोटी ज्यादा खाते हैं नॉर्थ में, साउथ में राइस ज्यादा खाते हैं। तो 70% जो होता है वो राइस, रोटी, इस चीजों से बनता है। सैलेड बहुत कम होता है, बहुत जगह पे प्रोटीन बहुत कम होता है। तो ये, इसको अगर आपको सिंपल तरीके से हैंडल करना है, अगर आप कर सकते हो, तो ये जो है ये प्लेट को आप याद रखिए, इसका चाहे तो फोटो लेके रखिए, ठीक है। उसके बाद जो आइडियल डाइट प्लान है, अभी जो डाइट प्लान मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि सबका डाइट प्लान अलग होता है, और इट इज गुड टू डिस्कस विथ योर डाइटिशियन कि आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे 8 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो जैसे इडली एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ भी और भी हो सकता है, और फ्रूट्स ले लिया आपने। फिर आपको 11 बजे थोड़ा सा खाना है, क्या अगर 11 बजे भूख लगती है, बहुत बार हम लोग ऐसी चीजें खाती है जिससे ब्लड शुगर सडनली बढ़ता है, जैसे कि बिस्किट, बिस्किट इजीली मिल जाता है, बहुत बार चॉकलेट्स रखे होते हैं फ्रिज में, इजीली मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो इजीली मिलती है, वो गलत होती है। फ्रूट्स या स्प्राउट सबसे बढ़िया है। फिर 1 बजे आप लंच कीजिए, 4 बजे स्नैक, वो स्नैक में भी हेल्दी खाना है, ये नहीं कि समोसे खा लिए या कुछ तला हुआ चीज को बहुत ही कम खाना है। और आपको रात को फिर प्रॉपर डिनर करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे। जब आप डायटिशियन से मिलोगे किसी भी, तो आपको आपका जो प्लान होता है वो पहले समझेगी कि आपका डाइट कैसा है, उसके हिसाब से आपको बना के देंगे, ठीक है। तो इट इज गुड दैट यू डिस्कस दिस विद योर डायटिशियन एंड गेट योर ओन डाइट प्लान, ठीक है। तो वो सबसे आइडियल रहेगा। अभी इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है डाइट प्लान के साथ, वो है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो अ डाइट प्लान। और बहुत लोग जो मैं डायबिटीज वालों से मिला हूँ बोलते हैं, अरे एक कटोरी राइस बोला, एक कटोरी दाल बोली है, एक कटोरी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मुझे, मेरे घर में डिफिकल्ट है मुझे ये डाइट प्लान फॉलो करना। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं, यार आई नीड सम हेल्प, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, टू गिव मी दिस डाइट। बहुत सारे लोग इस उम्र में भी, बहुत सारे एक्टिव लोग हैं जो बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि बाहर हमें ऐसा खाना नहीं मिल सकता। तो ये जो डाइट प्लान है वो आइडियल है, बट अभी जो स्टडीज हुई है उसमें ये पता चला है कि 6 out of 10 डायबिटिक पेशेंट दे कैनॉट एडहियर टू डाइट प्लान। तो 60% जो डायबिटिक है
वो इस डाइट प्लान को स्टिक नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से वापस उनका ब्लड शुगर जो है वो फ्लक्चुएट होता है और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन की जरूरत होती है ताकि यू कैन यूज इट इन 1 और 2 ऑफ योर मील्स। तो यहाँ पे आपको चाहिए एक सप्लीमेंट। अगर आप डायबिटिक हो, अगर मेडिकेशन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको डाइट प्लान में डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको जरूरत है एक अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। ठीक है, तो जनरली डायबिटिक, प्री डायबिटिक, ओबीस के लिए अच्छा सप्लीमेंट कौन सा है? सप्लीमेंट जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। इसमें फाइबर होने चाहिए, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अभी सोल्यूबल फाइबर मतलब वो होता है जो पानी में मिक्स हो जाए आराम से। ठीक है, तो ये क्या करता है सोल्यूबल फाइबर, जब आप इसको खाते हो तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके ये जेल बना देता है। तो जेल की वजह से आपको भूख नहीं लगती, तो आप बार बार खाना नहीं खाते। अगर आप बार बार खाना नहीं खाओगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। और इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है वो आपके जो सैलड्स में वगैरह इनसोल्यूबल फाइबर मिलता है, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा फैट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे फैट है, लेकिन वो फैट हार्ट फ्रेंडली, बिकॉज इस एज में हार्ट के प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो बादाम में मिलता है, अभी बहुत सारे सोर्सेस है उसके, तो अच्छा फैट होना चाहिए। जीरो ट्रांस फैट, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांस फैट कहाँ से आता है, जो बहुत अनहेल्दी है, तो ऐसा ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोटीन इसमें होना चाहिए ज्यादा, और कैलोरीज कम, क्योंकि कैलोरीज ऑलरेडी आपको खाने में बहुत सारी कैलोरीज मिल रही है, आपको कैलोरीज कम करनी है बीइंग अ डायबिटिक। ठीक है, तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और कोई शुगर उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ आइडियल सप्लीमेंट के क्राइटेरिया है जो गाइडलाइंस एक्सपर्ट लोगों ने बता के रखे हुए। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने बात की थी आपसे। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को रैंक करते हैं एबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू इंक्रीज ब्लड शुगर। ठीक है, तो एक कार्बोहाइड्रेट कितना ब्लड शुगर बढ़ाएगा उसके हिसाब से उसको रैंकिंग मिलती है। ठीक है, तो अगर उसका रैंकिंग 0 to 55 में है तो लो ग्लाइसेमिक, मतलब वो आपके लिए अच्छा है। मॉडरेट होता है 55 के ऊपर 69 तक, और 70 और अबव मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसे फूड खाने हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ऐसे कौन से फूड है और उसका क्या एग्जाम्पल है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे जो ब्रेड है आपका, वो आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। ठीक है, 75 74 ये है ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो रोटी आप खाते हो वो आती है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका है 62। चपाती वही है, बट उसका फॉर्मेट अलग होता है थोड़ा सा। उसको वेस्टर्न साइड में चपाती बोलते हैं, एकदम पतली होती है, रोटी थोड़ी सी जाड़ा होती है। तो चपाती जो है वो 52 है, ये काफी क्लोज है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आसपास है। ठीक है, अगर आप व्हाइट बॉइल्ड राइस लोगे तो 73 है, ब्राउन बॉइल्ड राइस थोड़ा सा कम है, 68 में है। ठीक है, बार्ली वगैरह बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। राइट साइड में देखिए, पोटैटो है 78 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत ज्यादा है। ठीक है, मिल्क कम है, मिल्क ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। आइसक्रीम मीडियम में आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फूड, खास करके राइस और ब्रेड, ये मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो आपको थोड़ा सा लिमिट करना है उनका क्वांटिटी। ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह में ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप कम खाते हो तो वो चल सकता है, दैट इज ओके विथ यू। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे। अभी मैं आऊंगा सप्लीमेंट की तरफ। तो जैसे डॉक्टर रेड्डी विकास जी ने शुरू में आपको स्लाइड दिखाई, तो हमने एक जो सप्लीमेंट बनाया है सेलिविडा, which is specifically designed for diabetes, pre-diabetes और weight management। ठीक है, और अभी वो 2 फ्लेवर में है, एक है केसर इलायची जो खास इंडियन फ्लेवर है, जो पहली बार हमने यहाँ पे लॉन्च किया, जिसमें एक्चुअली केसर और इलायची हमने ऐड की थी, और दूसरा है चॉकलेट का फ्लेवर। ठीक है, और इसको अभी हम 2022 में
इसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर इन डायबिटिक कैटेगरी में अवार्ड भी मिला हुआ है इसको। अब इसकी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खासियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हाई प्रोटीन है, प्रोटीन ज्यादा है, ऑलमोस्ट 30% प्रोटीन है यहाँ पे। फाइबर ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, फाइबर जो होता है वो आपकी सटाइटी बढ़ाता है, ताकि आप अगला मील जो है आपका वो आप कम खाओगे और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। इसमें कोई शुगर ऐड नहीं की है। जो फैट इसमें डाला है वो है हार्ट फ्रेंडली फैट, ठीक है। इसमें 12 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर देता है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है सीनियर सिटीजन्स में। और सेकेंड, आफ्टर कोविड वी आर ऑल वरीड अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करेंगे। इसमें प्रोटीन ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, कैलोरी कम है, तो ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो ओबीज लोग जो है, अगर आप कोई भी आपका एक मील जो है उस मील को कट करके, जैसे अगर आप 3 चपाती, राइस, सब्जी ये सब खा रहे हो, तो आप 1 चपाती पे आइए और आप राइस को आधा कर दीजिए और उसकी जगह पे आप 1 ग्लास ऑफ सेलिविडा पिए, तो आपको कैलोरी कम मिलेगी, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा मिलेगा। इससे आप आपकी कैलोरी कम करोगे, कार्बोहाइड्रेट कम करोगे और प्रोटीन और फाइबर बढ़ाओगे, ठीक है। अगर आप का जो ऐसा कोई मील है जैसे स्नैक टाइम, तो बहुत लोग ये सीनियर सिटीजन्स इसको लेते हैं शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे क्यों लेते हैं? क्योंकि लंच होता है अराउंड 1 o'clock, सम पीपल हैव लंच अराउंड 2 o'clock, ठीक है। और उसके बाद डिनर होता है रात को 7:30, 8, 8:30 बजे। तो बीच में 5 बजे भूख लगती है, ठीक है। और वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट फूड आदमी खाता है। तो उस टाइम पे अगर आप सेलिविडा लोगे तो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल में, वेट कंट्रोल में काफी सारा हेल्प मिलेगा, बिकॉज आप कुछ अनहेल्दी नहीं खाओगे। तो ये एक और ओकेजन है जहाँ पे ये प्रोडक्ट काफी लोग लेते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हमने क्लिनिकल स्टडी किया है जो सिर्फ 27 है। आपने बहुत सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखे हैं, जैसे जो 70, 69, 72, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, 27, और ये 3 घंटे की आपको सैटिस्फैक्टरी देता है। ये डे 1 से काम करना शुरू करता है। तो हमने स्टडी में देखा कि डे 1 से जो सेलिविडा ले रहे थे उनका बेटर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रहा है, और इस पे 2-3 क्लिनिकल स्टडीज हम कर चुके हैं। तो ये एक सप्लीमेंट है जिसके काफी सारे साइंटिफिक स्टडीज हमने डॉक्टर वी मोहन, जो चेन्नई में काफी बड़े एक्सपर्ट है, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत सीनियर डॉक्टर है। उनके साथ हमने ये 3 पब्लिकेशन भी किए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो बहुत इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और इसका जो मैं आपको सिर्फ इसका सार बताऊंगा कि क्या रिजल्ट आए थे। पहले ये आया कि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो ये आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, इसको कंट्रोल में रखेगा। ये डे 1 से काम करना शुरू कर देता है, जब से आप शुरू करते हो। 3 घंटे की सैटिस्फैक्टरी देगा आपको। इसमें हमने जो पेशेंट को ये प्रोडक्ट दिया था उनमें 24 आवर ग्लूकोज मॉनिटरिंग की थी हमने, एक सेंसर लगा के जो उनके आर्म पे लगाया था, और वो कंटिन्यूअस ग्लूकोज रीडिंग लेता रहता है। और जो दूसरा ग्रुप था उनको हमने डायबिटिक डाइट दिया था, जो डाइट प्लान था प्रॉपर। तो जो डाइट प्लान में लोग थे उनके कंपैरिजन में जो सेलिविडा वाला ग्रुप था उनका 24 आवर ग्लूकोज कंट्रोल काफी बेटर था। और जब ये प्रोडक्ट 6 महीना उन्होंने यूज किया तो उनका HbA1c और फास्टिंग ग्लूकोज काफी कम हो गया था, और उनका HDL कोलेस्ट्रॉल, विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, जिसे हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो बढ़ गया था। तो ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के साथ दिखाई दिए हैं। तो इसको आप आपके डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है? तो एक ग्लास में, जो एवरेज साइज ग्लास होता है, उसमें रफली 200 ml पानी आ जाता है। तो मैं ये आप दूध के साथ भी ले सकते हो अगर आपको, लेकिन आपको अगर कैलोरीज कम करनी है तो आप पानी में लीजिए, ठीक है। उसमें आप एक स्कूप जो है, स्कूप अंदर आता है प्रोडक्ट के साथ, जिसमें 25 ग्राम पाउडर है, उसको ऐड कीजिए।
और मिक्स कीजिए और 30 मिनट्स के अंदर आपको धीरे धीरे उसको कंज्यूम कीजिए। तो ये पानी और मिल्क दोनों के साथ आप ले सकते हो। हमारी तरफ से भी रेकमेंड इसको 2 बार लीजिए, एक बार सुबह, एक बार शाम को, और या फिर आपके फिजिशियन जैसे रिकमेंड करेंगे उसको आप ले सकते हैं। जनरली जो ओवरवेट लोग हैं, जिनको वेट कम करना है, उनको इसको रिप्लेस करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया उसके ऊपर सप्लीमेंट लिया, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में लाना चाहते हैं और आपका वेट ज्यादा है, तो उसमें आपको आपका कोई भी मील आपको कट करना है या रिप्लेस करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लोगे इसको, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर ब्रेकफास्ट में आप जैसे 2 पराठे खा रहे हो, तो 1 पराठा खाइए और 1 ग्लास ऑफ सेलिविडा लीजिए। अगर आप 4 इडली खा रहे हो, इफ यू आर टेकिंग 4 इडलीज, कट डाउन, eat 2 idlis and take 1 glass of Celevida. Similarly, you can use it in the snack replacement in the evening time. तो 2 बार आप ले सकते हो ताकि you will control calories. So overweight obese instruction याद रखिए, don't take it over and above your diet. ठीक है, replace your diet, part of your diet with this drink. बट अगर आप अंडरवेट है, मतलब आपका वजन कम हो चुका है डायबिटीज की वजह से, उसमें आप इसको एज अ सप्लीमेंट, मतलब ओवर एंड अबव द डाइट ले सकते हो। अगर आप थिन डायबिटिक हो, पतले हो चुके हो डायबिटीज की वजह से, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा वेट बढ़े आपका, तो डाइट के ऊपर आप ये ले सकते हो इन एडिशन टू द डाइट इफ यू आर थिन डायबिटिक। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई मैजिक पिल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, आपको मेडिकेशन लेना ही, ये मेडिकेशन को रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। मेडिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 70% डायबिटिक का ब्लड शुगर जो है वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है। तो उसमें आपको इस तरीके के सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका कैलोरी कम हो जाएगा, फाइबर बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा और ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। प्लस एक्सरसाइज आपको करना है। तो ये 3 जब साथ आएंगे, अमर, अकबर, एंथनी, तभी आपका बेटर ग्लूकोज कंट्रोल होगा। ठीक है, किसी एक चीज के साथ ये नहीं होने वाला। तो ये भी है, ये कोई मैजिक पिल नहीं है, मैं कंपनी की तरफ से, बट आई एम अ डॉक्टर, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू कि ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका एक बेटर कंट्रोल। तो ये डायबिटीज, प्री डायबिटीज एंड ओबेस, ओवरवेट पीपल, सब में ये प्रोडक्ट विल बी यूजफुल। ओके, खास करके ओवरवेट ओबेसिटी के लिए कोई मेडिकेशन नहीं। जैसे अगर आप ओवरवेट हो लेकिन आप डायबिटिक नहीं हो या प्री डायबिटिक नहीं हो, तो आपको कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये सिर्फ जो ये ड्रिंक है, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू रिड्यूस योर वेट। ठीक है, प्लस एक्सरसाइज डेफिनेट। और अगर आप प्री डायबिटिक हो एंड ओवरवेट ओबीस हो, तो सिंपल टिप्स डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए, बिकॉज इफ यू आर प्री डायबिटिक यू आर लाइकली टू बिकम डायबिटिक वेरी सून। गेट मोर फिजिकल एक्टिविटी, टेक लॉट ऑफ फाइबर। फाइबर कहाँ से आएगा? आई टोल्ड यू, फ्रॉम सैलेड, फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू विल गेट लॉट ऑफ फाइबर। आपको अगर रेडीमेड फूड से चाहिए तो ओट है, बार्ली है, वहां से आपको फाइबर मिलेगा। गो फॉर होल ग्रेन। ठीक है, होल ग्रेन मतलब जैसे आप, जिसको हम बोलते हैं जो पूरा गेहूं का आटा बनता है वो होता है होल ग्रेन आटा। ठीक है, और जो मैदा होता है वो बनता है रिफाइंड ग्रेन से। ठीक है, तो जब भी आप, सिंपल टिप, आप जैसे सबको नान अच्छा लगता है, बट हम जब होटल में जाते हैं तो इट इज बेटर टू ऑर्डर रोटी rather than naan, because naan is made up of मैदा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है जो आपको हेल्प करेगी। वेट लूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्किप फैट डाइट। बहुत बार आपको फैट डाइट्स मिलेंगे, ठीक है, कीटो डाइट्स है, और बहुत सारे लोग होते हैं वो एडवर्टाइज करेंगे, लेकिन इस डाइट पे आप लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। आपको कोई बोलेगा कि आप सिर्फ जूस पियो, ठीक है, तो या दूध कंप्लीटली बंद कर दो। तो ऐसे जो डाइट्स होते हैं ये आप कुछ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना, इसमें आपको वेट लॉस भी दिखेगा। बट जैसे आप उस डाइट से थक जाओगे, you will start taking those foods again, you will put on more weight than you lost. Therefore don't go for
fat diets. Any kind of fat diets are not good for you. तो उसको अवॉइड कीजिए. आपका ही रेगुलर फूड खाना है आपको, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे पोर्शन साइज कम कर दिया, ठीक है, मतलब अमाउंट कम कर दिया आपने. दो मील के बीच में कुछ नहीं खाना. अगर आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हो, 12 बजे लंच कर रहे हो, तो उस 4 घंटे के बीच में कोई भी चीज, जैसे आपको अगर चाय पीनी है तो आप पी सकते हो, बट विदाउट शुगर पीजिए, ठीक है. कॉफी पीनी है, विदाउट शुगर पीजिए. तो ये सिंपल टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो. एंड देन यू कैन ऐड सेलिविडा एज अ स्नैक और पार्शियल मील रिप्लेसमेंट, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है. सो ये कुछ सिंपल टिप्स है. और अगर आपको, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सेलिविडा और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, ये हमारी वेबसाइट है drreddy'snutrition.com. आप यहाँ पे जा सकते हो. हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है सेलिविडा इंडिया, और फेसबुक पेज भी है विच इज सेलिविडा. और आपको अगर यहाँ से आपको डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हो. अगर आप ये देख रहे हो स्लाइड, यू कैन स्कैन इट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द इंस्टाग्राम पेज. तो अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ये यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, और यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है. So yes, so I tried to cover everything in a short span of time. So what we learned today is what is diabetes, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्नोसिस कैसे होता है, प्री डायबिटीज के लिए क्या लेवल होती है, डायबिटीज की क्या लेवल होती है, और ओवरवेट ओबेसिटी के लिए आपको हाइट और वेट से आपका बीएमआई पता चलेगा. सो कंसल्ट योर डॉक्टर, गेट दिस टेस्ट डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Second, medication alone does not work if you are diabetic, ठीक है. So you have to control your diet, ठीक है. तो डाइट कंट्रोल में हमने देखा प्लेट कैसी होनी चाहिए, कितना हाफ पोर्शन जो है वो सैलेड से या फाइबर रिच वेजिटेबल्स से होना चाहिए, और 1/4 पोर्शन जो है वो होल ग्रेन, जैसे चपाती है, आपकी रोटी है, या ब्राउन राइस भी आप वहाँ ऐड कर सकते हो, और 1/4 पोर्शन जो है वो आपका प्रोटीन से होना चाहिए, जो आज नहीं है, ठीक है. डाइट प्लान आप डाइटिशियन से आपका खुद का डाइट प्लान बनवा सकते हो, लेकिन हमने देखा डाइट प्लान इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो. तो यहाँ पे आपका सप्लीमेंट आता है जो आपको प्रोटीन देगा, कम कैलोरी देगा, अच्छा फाइबर देगा. तो वी हैव शोड यू द की फीचर्स ऑफ डॉक्टर रेड्डीज सेलिविडा आल्सो, व्हिच इज क्लिनिकली प्रूवन, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, दैट वी डिस्कस टुडे, एंड द टिप्स. सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. डॉक्टर जोशी, I would really like to thank you कि आपने इतना डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमें दिया. इस सेशन में आपने हमें डायबिटीज के बारे में इतना सब समझाया है, और आपने बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में भी हमें वो प्रेजेंटेशन बताया. तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी. आपके सेशन के बाद वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर गेम ऑफ न्यूट्रिशन and how it plays an important part when you are a diabetic, pre-diabetic or you're obese also. तो और ये बहुत ही important part मुझे लगता है आपने बोला कि सिर्फ दवाइयाँ से आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी. मतलब that is a scientific fact that we have come with a lot of research that has been backed by a lot of studies. तो हमें ऐसे लगता है हमेशा कि हम बीमार हो गए या हमें डायबिटीज हो गई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हम बहुत ही रिलीजियसली वो दवाइयाँ मुझे लगता है टाइम टेबल भी रख के दवाइयाँ हम लेते हैं. बट दैट इज जस्ट वन पार्ट. हमें हमारा डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, एंड टू हेल्प अस इन ऑल ऑफ दिस देयर इज दिस ग्रेट प्रोडक्ट फ्रॉम डॉक्टर रेड्डीज, दैट सेलिविडा, जो हमारे इस फाइट में हमें मदद करेगा. So I would also like to tell all our participants today कि आप आपके ख्याल ऐप के द्वारा आपको ये सेलिविडा का सैंपल डॉक्टर रेड्डीज खास करके आपके लिए लाया है. तो यू कैन गो अहेड एंड अवेल ऑफ दिस फ्री सैंपल. आपको बस अपने ख्याल ऐप में जाके अपने डिटेल्स डालने हैं. उसमें आपका नाम होगा, नंबर होगा, और आपका फोन नंबर और आपका एड्रेस, एंड वी विल बी शिपिंग the box of Salivida to all our Khayal community and our Khayal club members. You can also go ahead and
tell about this to all your friends and family, and they can also download this app and they can also go ahead and avail of this offer, because the whole idea is that ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि हमें अगर कोई भी बोलेगा कि आप अपना खाना चेंज कर दो, तो हमें ऐसा बहुत पर्सनल लगता है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक डॉक्टर नंदन हैज सेड दैट इट इज वेरी कल्चरल ऑल्सो, हम बचपन से ये करते आ रहे हैं, and then for us to make a couple of changes in a diet is a little difficult. So I'm sure, but after watching this entire session, जिसमें हमने GI index के बारे में बात किया, तो वो तो हमें पहले इसके बारे में पता ही नहीं था कि how important foods have GI index and how carbohydrates can go and spike your GI index, और वो आगे जाके हमें बहुत सारी चीजें हम सपोर्ट कर सकते हैं if we maintain our GI index. So the entire thing is there are lots of things that we need to do, like exercise, like diet, like maintaining a GI index. And Dr. Nandan has gone ahead and explained all of it. So a very big thank you, Dr. Nandan. And as part of the Khayal Club, whenever we like something, when we like a presentation, so this is a very big double thumbs up to you, sir. Thank you very much. आप यहाँ पे आए, आपने you spend time with our community members, with our club members. Thank you so much. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.